Hello everyone, let's continue with the strict recoverability. Strict recoverability. Strict recoverability. So here transaction is given and here write of A, then commit or rollback. After that read of A or write of A. Okay, so ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा इसको, अगर राइट ऑफ ए हो रहा है तो उसको कमिट या रोल बैक करेंगे, उसी के बाद क्या कर सकते हैं, रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे। राइट, तो उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, रीड या फिर राइट कर सकते हैं। सो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग दैट इंश्योर स्ट्रिक्ट टू पीएल that ensure serializability. Ensure serializability. Also, it ensure the strict recoverability. Ensure strict recoverability. It will ensure the strict recoverability also. Okay, and next thing we can say स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी मीन्स, ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि नो ई रिकवरेबिलिटी, नो ई रिकवरेबिलिटी। सेकेंड थिंग, नो कैस्केडिंग रोल बैक, नो कैस्केडिंग रोल बैक, तो ये भी नहीं होगा कैस्केडिंग रोल बैक। एंड नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। इसका मतलब जो स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल होगा तो उस केस में क्या होगा, it will ensure the serializability, it will ensure strict recoverability, and strict recoverability means there is no irrecoverability, no cascading rollback, and no lost update problem. ओके, सो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग से क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी। इज इट क्लियर टू ऑल? Okay, fine. And here we can write down a note that strict 2PL में strict 2PL may not free from deadlock and starvation, may not free from deadlock and starvation. Okay, so strict टू फेज लॉकिंग में स्टिल डेडलॉक हो सकता है और स्टारवेशन भी हो सकता है। राइट, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी। Now next thing is
Okay, so these are the serial schedule. Serial schedule. Here these are the strict two phase locking, strict 2PL. Here basic 2PL, and here conflict serializable schedule, and here it is view serializable schedule. View serializable schedule. Right? So someone is standing here, it means serial schedule. If it is serial, also stick to 2PL. It is also basic 2PL, also conflict serializable, also view serializable. What about if someone is standing here? It means it is a strict 2PL. It is also basic 2PL, also conflict serializable schedule, also view serializable schedule. But it may not be the serial schedule. It may not be serial schedule. Next, if someone is standing here, it means it is basic 2PL, it is conflict serializable, also it is view serializable, but it need not be strict 2PL, right? If it is basic 2PL, it need not be strict 2PL. Okay, so this is what the relationship. Now tell me, is it clear to all? ओके, रिपीट करना है। देखो, कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरियल शेड्यूल है, राइट? एंड सीरियल शेड्यूल मीन्स इट इज ऑल्सो strict. It is also allowed by two phase locking, strict two phase locking, also allowed by two basic two phase locking, and it is a conflict serializable schedule, also it is view serializable schedule, right? बट अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग मीन्स इट इज अलाउड बाय स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, इट नीड नॉट बी सीरियल शेड्यूल, right? If schedule which is allowed by strict two phase locking need not be serial schedule, right? और अगर कोई पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट इज बेसिक 2PL, इट इज अलाउड बाय बेसिक टू फेज लॉकिंग बट नीड नॉट बी अलाउड बाय स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, राइट? यहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना, तो ये एरिया किसका है, बेसिक टू फेज लॉकिंग का है ना, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग भी हो, बिकॉज यहाँ पे ये एरिया किसका है, बेसिक टू फेज लॉकिंग का है, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग का नहीं है। समझ आया? यस, गोट इट और नॉट? ओके, फाइन. Now next we'll discuss about the timestamp ordering protocol. Timestamp ordering protocol. Timestamp ordering protocol. So first thing, what is the timestamp? What is timestamp? So for timestamp we can say it is a unique value
assigned by DBMS assigned by DBMS in in advance in advance to every transaction in advance to every transaction every transaction in in sequential order. ओके तो एक ऑर्डर में क्या किया जाएगा, पहले ही यूनिक वैल्यू असाइन कर दी जाएगी, राइट। टाइम स्टैम्प क्या है, एक यूनिक वैल्यू है दैट इज असाइंड बाय द डीबीएमएस इन एडवांस टू एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन को एडवांस में असाइन कर दिया जाएगा, जैसे कि वैल्यू 10 असाइन कर दिया, किसी ट्रांजेक्शन को 20 कर दिया, किसी को 30 कर दिया, इस टाइप से वैल्यूज़ को असाइन किया जाएगा, राइट। दीज वैल्यूज आर व्हाट, टाइम स्टैम्प। So here we can say that these are the transactions, assume, just a minute. This is what transaction T1, here T2, T3, T4. Okay, so here value 10 is assigned to this one, 20 assigned to this one, 30 is assigned to this one, 40 is assigned to this one, right। तो इस टाइप से क्या किया जा सकता है, यूनिक वैल्यू असाइन की जाएंगी, राइट। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या रहेगी, दैट इज द ओल्डर वैल्यू, ओल्डर ट्रांजेक्शंस। एंड दिस वन इज व्हाट, हाईएस्ट वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगा, यंगर ट्रांजेक्शन। दिस वन इज द यंगर ट्रांजेक्शन, इसको यंगर ट्रांजेक्शन बोला जाएगा। सो हियर ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन टी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए ट्रांजेक्शन विद मिनिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू, ए ट्रांजेक्शन विद मिनिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू, मिनिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, यंगेस्ट ट्रांजेक्शन। यंगेस्ट ट्रांजेक्शन टी, तो इसको कह सकते हैं कि ए ट्रांजेक्शन विद मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, ए ट्रांजेक्शन विद मैक्सिमम ट्रांजेक्शन वैल्यू, मैक्सिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू, मैक्सिमम टाइम स्टैम्प वैल्यू। टाइम स्टैम्प वैल्यू, ओके। सो ये ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन होता है, ये यंगेस्ट ट्रांजेक्शन होता है, तो दोनों का पता चल गया। जिसकी हाईएस्ट मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होता है, हमारा ओल्डेस्ट ट्रांजेक्शन होता है, और जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारा यंगेस्ट। तो ये वाला क्या है, ओल्डेस्ट है, और ये क्या है, यंगर ट्रांजेक्शन है। इज इट क्लियर टू ऑल?
Okay, fine. Here transaction T1 and T2, right? Here it is read of A, and here it is write of A, right? And transaction ID for this one is 10 and here it is 20. ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 20 से 10 की तरफ मूव कर रहे हैं ना, बिकॉज डेटा आइटम ए है, यहाँ पे भी डेटा आइटम ए है। सो 20 से 10 की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि ज़्यादा से हम कम की तरफ आ रहे हैं, है ना। ये हायर वैल्यू है और हम लोअर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में रोल बैक करना पड़ेगा। सो हियर वी नीड टू डू द रोल बैक। ओके, तो यहाँ पे रोल बैक करना पड़ेगा। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट केस, लेट्स सी दिस वन। हियर T1 T2, value for T1 is 10, value for T2 is 20. Here it is right of A and here it is right of A. ओके, तो अब भी क्या कर रहे हैं, हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं। यहाँ पे जाएंगे ना, तो हाईएस्ट से लोवेस्ट पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे भी रोल बैक करना पड़ेगा। वी नीड टू डू द रोल बैक, रोल बैक करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट केस T2, here it is write of A, here it is read of A। ओके, और इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 20 है, तो 20 से किस पे जा रहे हैं, 20 से 10 पे जा रहे हैं ना, तो हाईएस्ट से किस पे जा रहे हैं, लोवेस्ट वैल्यू पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे केस में रोल बैक करना पड़ेगा, यहाँ पे भी रोल बैक करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ रोल बैक। इन केसेस में हमें रोल बैक करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, well, fine. Now let's see the next thing. So now we'll see some of the rule of the basic timestamp ordering protocol. Basic timestamp ordering protocol, बेसिक टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल्स। तो इसके रूल्स देखते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या रहेगा कि ट्रांजैक्शन टी परफॉर्म रीड ऑफ ए, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन टी परफॉर्म परफॉर्म रीड ऑफ ए। ओके, तो ये रीड ऑफ ए परफॉर्म करेगा। तो इस केस में इस केस में क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। सो हियर if write time stamp of a that is greater than timestamp t, timestamp t is the current timestamp, right? Then roll back, then roll back। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज अदरवाइज
otherwise write timestamp of a that is less than equal to timestamp t means current timestamp, then allowed to execute allowed to execute read of a allowed to execute read of a by transaction t, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अलाउ करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू असाइन कर देंगे सेट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए इक्वल टू मैक्स ऑफ रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए एंड टाइम स्टैम्प टी। टाइम स्टैम्प टी इज नथिंग बट द करंट टाइम स्टैम्प। ओके, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो क्या कर देंगे, रीड को असाइन कर देंगे। ओके, तो देखो एक बार करते हैं फिर से कि ट्रांजेक्शन टी दैट परफॉर्म द रीड ऑफ ए परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। रीड कर रहे हैं ना, तो उस केस में अपने को कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, राइट टाइम स्टैम्प को चेक करना पड़ेगा, अपने को चेक करना पड़ेगा राइट टाइम स्टैम्प। जस्ट ए मिनट। ओके, तो इस केस में अपने को इसका राइट टाइम स्टैम्प चेक करना पड़ेगा। अगर राइट टाइम स्टैम्प क्या है, ग्रेटर है किससे, करंट टाइम स्टैम्प से, तो क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, अगर राइट टाइम स्टैम्प ऑफ ए दैट इज ए लेस देन टाइम स्टैम्प टी, यानी कि करंट टाइम स्टैम्प क्या है यहाँ पे, बड़ा है, राइट। ये अगर बड़ा है तो अलाउड करेंगे, अलाउड टू एग्जीक्यूट रीड ऑफ ए बाय ट्रांजेक्शन टी, और सेट कर देंगे क्या, वैल्यू ऑफ रीड टाइम स्टैम्प। रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू सेट कर देंगे, क्या सेट कर देंगे, मैक्सिमम ऑफ रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए और टाइम स्टैम्प टी, इन दोनों का मैक्सिमम जो भी होगा वो क्या कर देंगे, रीड टाइम स्टैम्प को असाइन कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द ट्रांजेक्शन टी परफॉर्म द रीड ऑफ ए। उस केस में अपने को ये करना है। अभी नहीं भी समझ आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पल लेंगे उसमें समझ आ जाएगा, और इतना समझ आ गया तो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो एक बार बताना ज़रा, समझ आ गया इतना पॉइंट्स। समझ आ गया, ओके फाइन। नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज दैट ट्रांजेक्शन टी परफॉर्म राइट ऑफ ए, transaction t perform write of a, in that case what we need to check। अगर राइट परफॉर्म करेगा तो उस केस में अपने को क्या चेक करना पड़ेगा, फर्स्ट रीड टाइम स्टैम्प ऑफ ए that is greater than time stamp t।
ओके, एंड देन रोल बैक। अगर रीड टाइम स्टैम्प क्या है, करंट टाइम स्टैम्प से मान लीजिए कि रीड की वैल्यू क्या थी, रीड ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, और करंट टाइम स्टैम्प की वैल्यू क्या है, मान लीजिए ये 20 है, और करंट टाइम स्टैम्प जो है हमारा टी एस ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या है 10 है, राइट। तो ये ग्रेटर हो गया ना, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा, इस केस में हमें रोल बैक करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, if write timestamp of a that is greater than the current timestamp t, then roll back, तो उस केस में भी रोल बैक करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें राइट के केस में दोनों वैल्यूज को चेक करना पड़ेगा, रीड की वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा और राइट की वैल्यू को भी चेक करना पड़ेगा, राइट। दोनों से कंपेयर करके देखना पड़ेगा करंट ट्रांजैक्शन की वैल्यू, राइट। और अगर ये हैपन होता है कि इसकी वैल्यू, रीड टाइम स्टैम्प की वैल्यू ज़्यादा है तो रोल बैक करना पड़ेगा, राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू ज़्यादा है तो भी रोल बैक करना पड़ेगा। तो इन दोनों केसेस में रोल बैक करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज it is allowed to execute right of a, it is allowed to execute right of a, allowed to execute right of a, by transaction t, okay, and set write timestamp of a equal to timestamp t, राइट। तो टाइम स्टैम्प टी को क्या कर देंगे, राइट टाइम स्टैम्प की वैल्यू इसमें असाइन कर देंगे, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी ये इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल रहेगा किसके लिए, रीड अप्लाई करने के लिए और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, राइट। सो दीज आर द रूल्स, और नेक्स्ट विल टेक द एग्जाम्पल and we'll understand how to perform the basic timestamp ordering protocol. Okay, so is it clear to all, the right timestamp, sorry, that how to perform the write of a, okay fine, ओके। फिर यहाँ तक आप कर लेंगे,